آج ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ 60 کی دہائی میں پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی تھی۔ آج کے تمام ایشین ٹائیگرز ہم سے پیچھے تھے۔ 1985 کے بعد پاکستان نیچے جانا شروع ہوا، بھارت اور بنگلہ دیش آگے نکل گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین یورو بانڈز کے باضابطہ اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم منصوبے شروع کر دیتے ہیں مگر عمل درآمد سست ہوتا ہے۔ مستقبل کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ صرف الیکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک آگے نہیں جا سکے گا۔ ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے۔ پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں چوتھے نمبر پر تھی۔ سارے جتنے بھی ایشین ٹائیگرز تھے یہ سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے، کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی، آگے جنریشنز کی سوچ تھی۔ جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نہ، اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کو ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے، آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی۔ جو 60s میں ایک پاکستانیوں میں کانفیڈنس تھا، ایک ہوپ تھا، وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا۔ یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے، تو ان پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی۔ اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ، جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے صغیر میں مہنگی بجلی ہے۔ گرین بانڈ عالمی سطح پر مقبول ہو رہے ہیں۔ صرف رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں $107 بلین کی بانڈ کا اجرا کیا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں یہ کامیابی وزیر اعظم کی پالیسیز پر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ Have been becoming popular globally as countries reorient their policies to join the race to zero emissions. Only in the first quarter of this year, the world issued $107 billion of such bonds. The success of this transaction was reflective of the confidence of the international community in the policies of the Prime Minister Imran Khan. And I think this is very evident. After the Eurobond, the Green Bond. The two projects, Bhasha and Muhammad, are critical to the country's future energy, water and food security needs. حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکالیف کا کوئی علم ہے؟ شہباز شریف نے کہا کہ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں لیکن حکمران سب اچھا ہے کہ بے حسی کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ عوام کو آٹا، گندم، چینی، سبزیوں، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے۔ حکمرانوں کے روز کرپشن سکینڈل آئیں گے تو روٹی مہنگی ہوگی۔ حکومت اضافی گندم پیدا کرنے والے ملک میں آٹے کی فراہمی یقینی نہ بنا سکی۔ اس کی کرپشن اور نااہلی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول کا IMF پر بیان حیرت انگیز ہے۔ آج تک پاکستان نے IMF سے $13.79 ارب لیے، ان میں سے PP نے 47 اور نون لیگ نے 35% قرضے لیے، باقی تمام حکومتوں نے مل کر 18% قرضہ لیا۔ بات کرنے سے پہلے اپنے ریکارڈ دیکھ لیا کریں تاکہ شرمندگی سے بچ سکیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے حکومتی اعداد و شمار کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاروں سے معاشی تباہی، بے روزگاری میں بہتری نہیں آ سکتی۔ جھوٹی معاشی بہتری دکھانے کے لیے اربوں روپے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ عمران صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مل کر عوام کو لوٹا۔ عمران صاحب کا کچن یہی ATMs چلاتے ہیں۔ مہنگائی کی بلند سطح پر پہنچنے کے مجرم عمران صاحب ہیں۔ جعلی اعداد و شمار مہنگائی کے مارے عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ اربوں روپے معیشت مہنگائی کے خلاف خرچ ہوتے تو جھوٹ نہ بولنے پڑتے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کہ معیشت کی بحالی کے اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ ملکی معیشت کی تباہی کی سب سے زیادہ ذمہ دار نون لیگ ہے۔ نون لیگ کا معیشت کی بہتری کو منفی رنگ دینا بے شرمی کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا پرچی شہزادے کی میں نہ مانوں کی گردان خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اپوزیشن اور PDM ٹولے کی مفادات پرست فیملی لمیٹڈ سیاست آخری سانس لے رہی ہے۔ اپوزیشن کا منفی پروپیگنڈا ناکام بتاتے ہوئے ترقی کا سفر جاری ہے۔
PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन हो गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। उम्मीद थी कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। कयास आराइयां हैं कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे दी गई है। रिपोर्ट मेरे हक में है। अली ज़फ़र ने जो भी रिपोर्ट में कहा है कि उस पर एक्शन लिया जाए। कुछ ऐसी बातें मालूम हैं जो मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। अली ज़फ़र साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जुबानी रिपोर्ट दे दी है, तो वो रिपोर्ट मेरे लिए मुस्बत है। अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कुछ दोस्त यकजहती में मेरे साथ खड़े हुए, हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। न केस लड़े अदालत में, हमारे साथ सियासत न की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लाहौर सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीक कर दी है। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि पिछले 15 दिन में FIA ने क्या तहकीकात की, मामला कब से चल रहा है, अब तक तहकीकात क्यों मुकम्मल नहीं की गई, अगर आपका इदारा तफ्तीश नहीं करना चाहता तो बताए। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने बताया कि FIA के एक ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया है, हम केस पर हतमी दलाइल के लिए तैयार हैं। अदालत ने जहांगीर तरीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खत्म होने पर तलब कर रखा था। बैंकिंग कोर्ट में जज के तबादले के बायस केस की समाअत न हो सकी। चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि कमीशन खाने वालों ने पहले एहसास इमरजेंसी कैश की रकम में कट किया, अब सरकारी वैक्सीन की फरोख्त में माल बनाने का इंकिशाफ हुआ है। पर्ची चेयरमैन माल बटोरने की तरकीब की बजाय आवाम की फलाह पर तवज्जो दें। NCOC ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ दे दी। NCOC का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2 माह के लिए मौखर किए जाएं। कोरोना की तीसरी लहर को कामयाबी के साथ निपटा गया है। पाबंदियों को मौजूदा हालात में जारी रखने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में 1,75,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। सितंबर के अख्ताम में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर है। इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सियासी इज्तिमाआत होते हैं। इलेक्शन सरगर्मियों से कोरोना के फैलाव का खतरा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज शाम होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC हुकाम मौजूदा कोरोना सूरत हाल से आगाह करेंगे। NCOC इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक की जाएगी। कौमी राबता कमेटी को कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वैक्सीनेशन अमल को वसी करने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। तालीमी इदारे खोलने और इम्तिहानात से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक NCOC की तजावीज़ पर गौर होगा। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के बायस कोरोना का जोर टूटने लगा है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान वबा से 43 अमवात हुई। वायरस से अब तक 20,779 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। एक रोज के दौरान मुल्क भर में 52,223 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के बायस कोरोना का जोर टूटने लगा। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वबा से 43 अमवात हुई। वायरस से अब तक 20,779 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। एक रोज के दौरान मुल्क भर में 52,223 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,117 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 4.05% रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 236 फी मिलियन आबादी है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 92 फी मिलियन है। अगर वहाँ की अमवात की शरह आबादी के तनासुब से वो हो जो पाकिस्तान की है तो भारत में 2 लाख अमवात कम होती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 180,000 शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक NCOC का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। 2 माह में पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर 39 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कराची में रकम के एवज कोरोना वैक्सीन लगाने पर सेक्रेटरी सेहत सिंध की इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर का बयान भी कलम बंद किया गया। DHO सेंटर डॉक्टर मुजफ्फर ओडू ने टीम के साथ मालूमात ली। फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा ने सेक्रेटरी सेहत को अमले की शिकायत की थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कोविड वैक्सीन के 5 वायल कम निकले। वाक़े की रिपोर्ट महकमा सेहत के हुक्काम को फराहम कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे, आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए बुज़दार हुकूमत कोशां। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। खिदमत आपकी दहलीज का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासियाब, तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस है। उस्मान बुज़दार कहते हैं प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलतें मुहैया होंगी। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि गवर्नेंस का मुनफरिद मॉडल है। अवाम की खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का बुनियादी जुज़ है। अवामी मसाइल का फौरी इदराक हल फलाही रियासत का फर्ज है। इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात में मुल्जिमों की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार, आमिर खान, वसीम अख्तर, ख्वाजा अजहर समेत दीगर जो रहनुमा की जानिब से दायर बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है और अब ये फैसला 8 जून को सुनाया जाएगा। इससे कबल जो दरखास्त जब समाती हुई हैं तो एक गवाह जो कि इस्तिहासा की जानिब से पेश हुए थे, सलोबर खान, आज वो अपनी गवाही से मुनहरिफ हो गए। उनका ये कहना था कि उन्हें जबरदस्ती गवाह बनाया गया। जिस वक्त ये वाक़या हुआ वो शहर में मौजूद नहीं थे। अदालत ने इश्तियाल अंगेज जो केसेस है, तकारीर के केस है, उसकी समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी की है, जबकि बरियत की दरखास्तों पर फैसला 8 जून को सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे, सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि GDP शरह का 4% होना वज़ीर आज़म की एक मौशी महाज पर कामयाबी का सबूत है। मालियाती ज़खायर गुज़श्ता 5 बरस की बुलंद तरीन सतह $23 बिलियन पर पहुँच चुके। बरसों बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट बैलेंस $773 मिलियन सरप्लस हुआ। गुज़श्ता 3 बरसों में IT एक्सपोर्ट में दुगना इजाफा हुआ। कारों, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ी। ये तब्दीली सबके सामने है और इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। इसराइल के साथ तिजारत बंद, कुवैत का बड़ा फैसला। इसराइल के साथ तिजारत करने वालों को अब सजा दी जाएगी। कुवैती पार्लियामेंट ने इसराइल के साथ तिजारत करने वालों को 1 से 3 साल तक कैद का कानून मंजूर कर लिया। कुवैत में मुकीम गैर मुल्की शहरियों के लिए भी इसराइल का सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मिस्र डट गया। इसराइली वजीर खारजा ने दौरे मिस्र के दौरान हम मनसब सामे शकरी से मुलाकात की। मिस्री वजीर खारजा ने गजा में मुसलसल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनी इलाकों में कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करे। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स का ऐलान भी कर रखा है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए इक़्तिदार बचाना मुश्किल हो गया है। नई हुकूमत की तश्कील के लिए मिलने वाली डेडलाइन ख़त्म कर दी गई। 2 से 3 रोज़ में नेतन्याहू का 12 साला दौरा इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है। करप्शन मुक़द्दमात का सामना करने वाले नेतन्याहू इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए पोजीशन में नहीं रहे। इस्राइल में 2 साल में 4 इंतखाबात के बाद भी कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे सवाल के साथ मैं हूं।